Hello everyone, welcome to YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about mathematics. The topic of today is a very important and very miserable topic. It is very important for all the students of mathematics from beginning of the maths to the further studies of class 12. Today we are going to discuss about mensuration. We will discuss about what is mensuration, what types of shapes are studied in mensuration, what are the basic terminologies used in mensuration in both the languages for UP board and CBSE board or any other board which follows NCERT pattern. First of all, we will discuss it all for the English medium students. So the Hindi medium students don't have to be panic or worried because the later half of the video will concern them with their language in Hindi. We will discuss the video in both the languages, Hindi and English. So you have don't go anywhere to found where we are you from UP board or CBSE board or any other board, or either you are from English medium or Hindi medium. Only you have to follow us and be with us to the last of the video. We will thoroughly, deeply and very simply discuss all the topics covered in this chapter. It is very important for either you are in class 6, 7, 8 or 9, 10th or 11th or 12th. The type of questions may differ, but the mensuration is always there. So let's begin. What is the meaning of mensuration? First of all, when we think about mensuration, what is mensuration? A mensuration is a branch of mathematics where we study about 3D and 2D shapes of figures. What is mensuration? Mensuration is a part of mathematics where we study about 2D and 3D shapes of figures. Clear? As in triangle, rectangle, square, these are 2D shapes, and sphere, cuboid, cube, cone, cylinder, these are 3D shapes. Then first up in mind, what is 2D and what is 3D? 2D shapes are shapes that have only length and breadth. What is 2D shape? 2D shapes are the shapes which have only length and breadth. They don't have height or depth. While we talk about 3D shapes, all the 3D shapes have both all the three terms. Which are they? They have length and height, length and breadth like 2D shapes, but they also have either height or depth. Because of that reason, they are called solid shapes also. 3D shapes are also known as solid shapes. This is the basic. So we have to clear all the concepts in your mind. If you have any doubt, any query, you can ask in our videos description box or comment section, and we will try to resolve your queries as soon as we get the comment. Okay, we have now cleared what is mensuration, what is 2D shapes and what is 3D shape. Let's talk about some more terminologies used in the mensuration, which are very important for your further education in mathematics for mensuration. Let's begin. First terminology is area. What is area? The area is a surface which covered by a closed shape. If you have a 2D shape, either it is triangle, rectangle, sphere, triangle, rectangle, circle, square, whichever they are, the area
of the surface which they cover, the entire area, the entire space which have covered by them, it is known as area. Okay, for it is measured in square per unit. Area is always measured in square per unit. Always remember to clarify your unit when we are discussing about area or any other terminology used in mensuration or any other part of the mathematics. You have always remember what is the unit of their representation or measurement. So the area is a surface which is covered by a closed shape. Okay, a closed 2D shape is to be mentioned and it is measured in square per unit. Clear? The next one is what is perimeter? The measure of the continuous line along the boundary of the given figure is known as perimeter. Perimeter means if we say that this green board, the whole lines of are 4 lines adjoining each other. The total length of these lines, when we measure it, it is known as the perimeter of this green board. This is known as perimeter of a given figure. Clear? The perimeter is always measured in units. Single unit, it is measured as single unit. Okay? Then the next one terminology which is used in mensuration is volume. The space occupied by a 3D shape is called volume. We have already discussed in the earlier part of the video what is a 3D shape. So in volume, what is volume? The space occupied by a 3D shape. Means when a space is occupied by length, breadth and height or depth, the total surface, the total area occupied by that 3D shape, it is known as volume. Volume is always measured in cubic units. Clear? The next terminology is curved surface area. It is short form is CSA. CSA means curved surface area. If there is a curved surface, the total surface area of that curve, if there is a curved surface or curved figure, the total surface area of that curve covered, it is known as curved surface area. Most commonly, the curved surface area is we can see it in the cone shaped. All the cone shaped figures have curved surface area or it is known as CSA. Okay, and the curved surface area is always measured in unit squares, unit per square or square units. Clear? Next one is lateral surface area or it to be say as LSA. What is LSA? The total surface area of the lateral surfaces that surrounds the given figure is called LSA or lateral surface area. Means when we are talking about a 3D image, their lateral surface means these and these and these. The lateral surfaces are area of two adjoining surfaces. It is known as lateral surface area. The total surface area which are the lateral surfaces surrounds, it is known as total lateral surface area. It is also measured in square units. The last terminology used in mensuration is total surface area or it is said as TSA. The sum of all the curved surfaces and lateral surfaces areas is known as total surface area. The sum of all the curves, if you have a cone, the sum of all the curved surface areas, and if you have a cube or cuboid, then there is lateral surface areas. So what is total surface area? The sum of all the curved surface areas or lateral surface areas is known as total surface areas.
and the total surface area is also measured in unit squares. Clear? If you have any doubt, you can raise it in the comment box. We will try to solve your query as soon as we got the comment. Okay, now let's discuss it in Hindi for our Hindi medium students of all the boards which follows NCERT pattern. नमस्कार साथियों, हमारे चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन के विषय में चर्चा करेंगे। हम मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन में किस प्रकार किस चीज का अध्ययन किया जाता है, हम किस प्रकार उसका अध्ययन करते हैं और वहां पर किस किस बातों का प्रयोग हम करते हैं, किन किन तथ्यों का प्रयोग करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं पूरे मेंसुरेशन को पढ़ने के लिए। तो उसके विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। हम वीडियो के स्टार्टिंग में हमने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो का पूरा अवलोकन किया है। अब हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के बारे में इससे यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं मेंसुरेशन किसे कहते हैं। मेंसुरेशन गणित का वह विभाग जहां पर हम द्विआयामी और त्रिआयामी प्रतिचित्रों का अध्ययन करते हैं। मतलब द्विआयामी मतलब द्विविमीय है, जिसमें दो बीमाएं होती हैं या दो चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे लंबाई एवं चौड़ाई। और त्रिआयामी मतलब जहां पर त्रिविमीय या त्रिआयामी मतलब जहां पर लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई अथवा गहराई भी उपस्थित होती है। ठीक है, तो आइए हम फिर से जान लेते हैं। मेंसुरेशन मतलब होता है कि वह गणित का वह विभाग जहां पर हम 2D या 3D मतलब दो आयामी और त्रिआयामी चित्रों या त्रिआयामी चित्रों या वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मेंसुरेशन कहते हैं। अब बात आई दो आयामी और त्रिआयामी क्या होता है। दो आयामी मतलब वह सभी वस्तुएं जिनमें दो बीमाएं होती हैं। दो बीमाएं मतलब दो चीजों की आवश्यकता होती है जिन्हें जानने के लिए, लंबाई एवं चौड़ाई। जो दो बीमीय से बने होते हैं, जिनमें दो बीमाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं दो आयामी या 2D शेप। कौन कौन सी इसमें, जैसे मान लीजिए आपका लंबाई चौड़ाई हो तो उसे हम क्या कहेंगे, दो आयामी। उदाहरण के लिए इसमें आपका आता है वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त। ये सब क्या है, दो आयामी फिगर्स हैं। उसके बाद आता है त्रिआयामी या 3 डायमेंशनल फिगर्स या 3D जिसको आप कहते हैं। 3D क्या होता है, ऐसे सभी फिगर्स या वस्तुएं जिनमें लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई अथवा गहराई भी उपस्थित हो, उन्हें हम त्रिआयामी चित्र कहते हैं। उदाहरण के लिए सिलेंडर मान लीजिए, आपका कोन मान लीजिए, घन मान लीजिए, घनाभ मान लीजिए, ये सभी क्या है आपके, या गोला मान लीजिए, ये सभी आपके त्रिआयामी होते हैं, क्योंकि इनमें लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई और गहराई भी उपस्थित होती है। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपके मेंसुरेशन में मैथ के इस पार्ट में हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं। आइए जान लेते हैं कि इन सब का अध्ययन करने के लिए जो प्रमुख जो शब्द जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, गणितीय भाषा के शब्द जिनका हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ जान लेते हैं, जिनका हम प्रयोग आने वाले समय में मैं इस चैप्टर को सॉल्व करते समय करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये, यहाँ से क्वेश्चन भी पुट अप होता है और आप बहुत ही आसानी से इसे कर ले जाओगे यहाँ से समझने के बाद। तो स्किप मत करिएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहला जो तथ्य है उसे कहते हैं एरिया। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। चारों तरफ से चारों दिशाओं से घिरी हुई आकृति को क्षेत्रफल कहते हैं। जब क्षेत्रफल की बात होगी तो चारों तरफ से घिरी हुई आकृति जो होती है, जो बीच में आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, क्षेत्रफल कहते हैं। चारों तरफ से घिरी हुई आकृति को क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल को हम वर्ग प्रति इकाई नापते हैं। इकाई प्रति वर्ग मतलब इकाई गुणते इकाई, दो डायमेंशनल होती है,
दो सेपीय, दो विमीय होता है, इसलिए दोनों विमाओं का जब आपस में गुणा करेंगे तो 2 इकाई का स्क्वायर हो जाएगा। एक इकाई इसकी, एक लंबाई की, एक चौड़ाई की, दोनों इकाई मिलकर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया का जो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है प्रति स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर कह लीजिए, आप सेंटीमीटर कह लीजिए, जो आपका वहां पर दिया रहे। अब आप अगली बात करते हैं, अगला है पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का माप, एक छोर से शुरू, एक बिंदु से शुरू कर वापस उसी बिंदु पर पहुंचने में जितनी अधिकतम दूरी तय की गई हो, उसे उस चित्र का या उस वस्तु का परिमाप कहा जाता है। मतलब समझ में आया? नहीं। एक जैसे आप इस, ये क्या है, ये आपका ग्रीन बोर्ड है, इसके एक पॉइंट से शुरू करिए और पूरा घूमकर फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाइए, नापते हुए लंबाई, जितनी पूरी लंबाई नापी गई वो क्या है आपका, वो इस आयताकार ग्रीन बोर्ड का परिमाप है। परिमाप हमेशा इकाई में नापा जाता है, इसे प्रति इकाई नाप इसकी की जाती है। ठीक है। अगला है आपका वॉल्यूम, यानी होता है, इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वॉल्यूम का मतलब होता है घन। वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम को नापते हैं किसमें, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3D शेप, किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा, मतलब उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब हो, उसके द्वारा जो नाप लिया जाता है, उसके द्वारा जो घेरा बनाया जाता है, उसके अंदर जो घेरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम जो है वो आपका क्यूबिक यूनिट में नापा जाता है। क्यूबिक यूनिट मतलब क्या होता है, क्यूबिक यूनिट मतलब होता है घन प्रति, घन मतलब वो जो यूनिट होगी उस पर 3 पावर लगी होगी, उसे घन प्रति मीटर या घन प्रति सेंटीमीटर, आप या जिस भी मात्रक में उसे नापा गया है उसे वह कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब तिर्यक रूप से किसी ऐसे कोन वगैरह जो होते हैं उनकी जो माप होती है उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर कोई कोन की आकृति का कोई हमें वस्तु मिल रही है जिसकी हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो किसी कोन का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो उसे उसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह यूनिट प्रति स्क्वायर या इकाई, 2 इकाई प्रति मात्रक या इकाई स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? इसके बाद हम बात करते हैं, अगला होता है लेटरल सरफेस एरिया। जब हम किसी लेटरल सरफेस एरिया को कहते हैं अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल या समपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल या समपृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है दोस्तों, ये वो होता है कि जब आप ऐसे आइसक्रीम का बार लिए हैं, आइसक्रीम जो आपकी आती है होती है ना बड़े बड़े बार, ये छोटा नहीं जो आप जैसे अमूल वगैरह ये सब आए, तो उसकी जो आइसक्रीम की बार होती है उसको आप लीजिए, ऐसे इस आकार का होता है। आप इमेजिन करिए यहाँ आइसक्रीम रखी हुई है, इस आकार का है। उसको जब काटते चले जाते हैं, ऐसे काटिए तो जो इधर का हिस्सा होता है, सामने का, पीछे का हिस्सा, ये हिस्सा, नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, ये अलग अलग जो एरिया कवर कर रहे हैं अलग अलग सब का एरिया, इसका एरिया अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का अलग, इन सब को क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। ये एक साथ 2 का मेजर किया जाता है तो टोटल जो सरफेस एरिया होता है जो इनके द्वारा तय किया गया है या इनके द्वारा जिसको आच्छादित किया गया है उसे हम लेटरल सरफेस एरिया या आप अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल या समपृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये भी हमेशा इकाई, 2 इकाई मतलब प्रति मात्रक, प्रति स्क्वायर मात्रक पर इसका मापन किया जाता है। अंत में आता है आपका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल या समपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी को मिलाकर जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, इकाई
प्रति स्क्वायर मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, बात आपके अब समझ में आ गई होगी। ये वो सभी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके मेंसुरेशन में, गणित में प्रयोग की जाती हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे साथ लास्ट तक अभी तक बने हुए हैं और आपको बहुत ही हमने अच्छे और सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी बातें समझ में आ रही है, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे कंटेंट्स को वॉच करें, लाइक करें और आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। लाइक और शेयर करने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही यूट्यूब हमारे वीडियोस को आपके और भी दो साथियों के पास पहुंचाएगा और हमें थोड़ा सा पब्लिसिटी भी मिलेगी, लोग हमारे बारे में जानेंगे। तो इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे कंटेंट्स को वॉच और लाइक और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिससे वो भी अच्छे से इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़कर अच्छे से मेंसुरेशन को पढ़ पाए। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।